अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की पंचायत से, जो हमारी दही ज़िंदगी का एक हुस्न है और छोटे मोटे तस्फ़िये और गप शप के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, नाराज़ लग रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, आपने तारफ जो कराया मैं माफी चाहता हूँ। क्यों? ये पंचायत नहीं जनाब, ना ही असी पंचायत च पेश होना जी। क्यों? पंचायत को गल सुनती होवे तो असीं तुहाडे कोल कद लई आईए। बड़े चौधरी साहब को तो मैंने हमेशा बड़ा मुनसिफ और आदिल पाया है। स्वाद कट्टा, ये पिछले दिनों में गवर्नमेंट के बंदे आए हैं गाँव में, उन्होंने कहा कि लम्बरदार जी आगे हो, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुहिम चला रहे हैं ते सारिਆਂ ਨੂੰ कहो खुदा दा वास्ता जे बच्चियां ਨੂੰ ਇੱਥੇ कहो ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ पोलियो ਦੇ कतरे ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ कहो बच्चियां ਨੂੰ पोलियो ਦੇ कतरे पियाण। अगो सीधा ही उनको कहते हैं कि मैं खुद नहीं सन पीते तो मैं किसी को क्यों कवां। उन्होंने कहा आप नहीं सन पीते तो अपना हाल भी तो वेखो की होया। वाकई अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा जुल्म कमाया है आपने। ओ यार पुत जनेद, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਬਲਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਪੋਲੀਓ ਛੋਲੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। जैसे जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में लाखों बच्चे पोलियो का शिकार होके माजूर हो जाते थे हमेशा के लिए, पता भी नहीं चलता था। अच्छा नहीं जी नहीं, गल ये वे कि जब हुन गवर्नमेंट के लोग जो कह रहे हैं कि भाई पिलाएं बच्चों को कतरे, तो गल मुक्की तुसी गवर्नमेंट नाल बहुते सियाणे बन जांदे। बिल्कुल, एक सेहतमंद बच्चे वास्ते बड़ा जरूरी है पोलियो की। देखो ना, रब दी रहमत नाल ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਕਤਰੇ ਪਿਆਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਡੋਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਰਫ਼ ਸ਼ਰਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੂੰ ਜੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਉਂਝ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਡੀਂਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਖਵਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल। ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਖੁਦ ਪਿਲਵਾਏ। हाँ, अपने हाथ से आपको पिलाने चाहिए। आपको ਉਹ इसके ਚਲੋ ਜੀ पेट पे ਹੱਥੀ ਨਾ encourage ਪਿਆਵੇ, ਹੱਥੀ ਨਾ ਪਿਆਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। जैसे जिसको आप माड़ा माड़ा कह रहे हैं ना, आप जैसे बंदे को वो यूं बाले निकाल के ना खेत में फेंक देगा। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ। ਆ ਕਬੇਤੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲਾ ਬੂਆ ਤੇ ਕੱਢ ਸੰਗਲ ਬਹਿਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ऐसा खुदा के लिए मजाक कर रहे हैं ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ प्यार करते हैं। ਬੂਆ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਮਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੋਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਈ। ओ, बस करे यार, क्या फजूल बात कर रहे हैं चौक के बारे में। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਢੰਡੇਰੀ ਫਸੀ ਆ। नहीं, जैसे जरा मुझे बताए ना कि गांव का जो बड़ा होता है, जो चौधरी होता है, बल्कि गांव का जो खतीब होता है, या जो भी राय आमा को मुतासर कर सकता है, उनका फर्ज बनता है कि वो पोलियो के हवाले से जो आवाम में मुख्तलिफ फजूल किस्म के तसव्वुरात पाए जाते हैं, तवहमात पाए जाते हैं, उनका खात्मा करें। आप लोगों को एजुकेट करें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੇ ਲਾਓ ਕੁੰਡੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਫਸਾ ਛੱਡਦੇ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਟਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਉਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਨੈਮਿਆ ਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇ 7 ਨੰਬਰ ਰੇਗ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਚਾਚੇ ਨੇ। तो क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਲਮਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और राणा इतना फिर ग्रेसफुल नंबरदार है, इतना खूबसूरत आपको चौधरी मिला हुआ है। ਓਏ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ये तो है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਆ। तो अच्छी बात है ना, ये तो वेलफेयर का काम करते हैं, गांव की लस्सी जाया होने से बचा लेते हैं। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਅਗਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮਈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰਾਣਾ ਬਾ ਇਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾ ਇਲਮ, ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣਾ ਸੀਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਾ ਇਲਮ। ਉਹ ਵੀ ਚਵਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ? ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਰੀ ਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਦੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਮਰ ਗਈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨੈਮਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮਾਈ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਈ ਮਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰੀ ਆਈ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੀ ਆਈ ਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆ ਬਰਕਤੇ ਦਾ ਬੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਬੂਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਆ ਬਰਕਤੇ ਦਾ ਬੂਆ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਬੂਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾੜ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ 2 ਟੀਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਵੀ ਮਾਈ ਆ ਲਾ ਦਈਏ ਟੀਕਾ ਕਿ ਆ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਿੱਧਰ ਮਾਈ ਦਾ ਡੇਲਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। आपने मरीज से पूछ के टीका लगाया था? हद हो गया, आपको खुद नहीं पता? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਾਊ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਛਾਲਦਾ ਐਨ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਘੁਮਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਵਾ ਚ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਠਾ। यार हद हो गई। ਨਾਲੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਈ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ। ਨੈਮਿਆ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕੋ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਰਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਸੀਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। 6 ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वही शीशियां जो पहले दवाइयों के काम आती हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-10 ਪਿੰਡ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ ਰਗੜ ਕੇ ਤੀਲਾ ਫਸਾ ਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਕਰ ਗੋਲਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਰਾਣਿਆਂ।
गोला लगा लिया डॉक्टर साहब ने। ओ यार जुनैद साहब फिर इज्जत नाल रोटी कमानी कोई आसान काम तो नहीं ना। ये तो एडा मेहनती बंदा ने, मैं आंदा रहा मैं हराना साहब ओ मैं मशीन ले आ देना वा बर्फ वाले गोले वाली। ना 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 जो हाथ नाल रगड़ के वो गोला बनाने दा मजा हुंदा ना, खून पसीने दी कमाई इंशाअल्लाह खावांगे। नहीं वैसे अगर आपके राणा साहब जैसा बंदा बर्फ का गोला भी बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें भी खास बात होगी। मैं आना जी ये ते होरे जेलस होए गया मेरा भरा ते भतीजा। जिदन राणा साहब ने गोले वाली दुकान खोली अगले दिन ही ते सेल ला दी। अच्छा पिंड दा कोई बंदा वापस जान ही नहीं पिया देंदा राणा। अच्छा राणे ने ऐलान कर दिता पैसे नहीं तुहाडे कोल कोई गल नहीं, तुसी पुरानियां जुत्तियां ले आवो, पुराने कपड़े ले आवो, रद्दी ले आओ, लोहा ले आओ, प्लास्टिक तो गोले दे छड़े ने। तो बिजनेस में ना हुआ, ये तो वेलफेयर हुई ना। बाबूजी कोई राणे दे गोले तो रह ना जावे, इस गलो मैं कह जो मर्जी ले आओ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਗੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਦੇਤਾ। ਆ ਜੁਲਾਇਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਫੜਾਈ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਗੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। देंदा ना आइडा का मुंडा सी, आइडिया अखबार सी। चलो साहब देखिए, अब जिस गांव में इस तरह की अनहाइजेनिक चीजें, ये गोला, कुल्फियां, जलेबियां खुली बिक रही हो, वहां पर तो पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाना नागुज़ीर हो जाता है। मतलब जो जिसमें सफाई का ख्याल ना रखा गया हो। नहीं जनाब की वे कर दियो खुदा दा वास्ता जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ पूरे 10-10 ਪਿੰਡ केसरी रंग ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं। और खुदा का नाम लें, आपका ये दामाद जो है ना, अगर मैकडॉनल्ड भी बेचे तो वो भी गंदा करके बेचेगा। ओ भाई जी हैरान हो जाओगे, मुंह चुगना नहीं लोगे सुन के। आ शहर नहीं पिंड च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, बर्फ वाले गोले दे रंग च चांदी दे फर्क पाए होंगे राणे ने। वो चांदी का वर्क इनके हाथ में आने से पहले चांदी का रहता है, जब लग जाता है तो चांदी का नहीं रहता। मेरा ख्याल है प्रोग्राम चोट पइए एंकर दूजी पार्टी ना रल गए। यहाँ में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक और प्रॉब्लम वो ये है कि कई दिन काम करना। मर्ग वाले घर में अब पंजाब के कई इलाके, कई बरादरियां, कई कबाइल सिंध में या इधर आपके ऐसे पाए जाते हैं जहां पर ये मतलब फर्ज कर लिया गया है कि मर्ग वाले घर में कम से कम 7 दिन रहना जाके या 9 दिन रहना जाके। अच्छा हजूर वाला, हम कई मरतबा शादी ब्याह या दीगर खुशी के मौके पे जो होने वाली फजूल किस्म की रसूमात हैं या जो बेजा अखराजात हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है जो बाकायदा अब लम्हा फिक्रिया की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, वो ये है कि फौतगी के मौके पे जो फजूल रसूमात है, जिनका ना कोई अज़रूए शरीयत कोई जवाज है, ना माशरत आपकी इजाज़त देती है, ना आपकी जेब इजाज़त देती है, लेकिन फिर भी हम उस पर तुले हुए हैं। मैं कहता हूँ जी कि अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, अब तो फौतगियों पे ऐसा ऐसा अरेंजमेंट नजर आता है कि बाखुदा पता ही नहीं चलता कि ब्याह है कि कोई फौतगी। अच्छा फौरी तौर पे तो ज़हन में मेरे ज़हन में ये भी आता है कि मुर्दा ना उठ के कह दे कि हजूर सारा अरेंज तो कीता ही, फिर जानते हैं कि मेरा होर निकाह ही करा दे। ये सुन के हैरान रह जाओगे कि जब मैंने इस पे थोड़ा इसको डिग आउट करने की कोशिश की है, मामला कहाँ तक खराबी की सूरत इख्तियार कर चुका है, तो मैंने बुजुर्गों से पूछा अपने दही इलाकों के पास कि सर ये मामला क्या है हजूर वाला, ये इतना खर्चा करना, ये सब कुछ, इसका जवाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मरहूम की तरफ से उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा है रिश्तेदारों के नाम। उन्होंने कहा हजूर आपने कभी उससे पूछा कि मरने वाला कर्ज कितना अपने ऊपर छोड़ के गया, वही अदा कर दे आप, तोहफे देने की बजाय पूछ ले कि उसने कर्ज कितना देना था जिसके बगैर उसकी बख्शिश भी नहीं होनी। नहीं भी कर्ज देना तो आप उतने अखराजात से, उतने पैसे से
कोई किसी गरीब मस्कीन का भला कर मदद दे कर तो दें, हाँ। उसको सवाब उसका अब हो ये रहा है कि जैसे हमने अर्ज किया बार बार कि शादी ब्याह जो खुशी का मौका होता है वो एक आपके लिए तकलीफ का वक्त बन गया है कि आपको अखराजात पूरे करने हैं, आपको जो रसूम और जो रवाज है वो पूरी करनी है। तो अब जो फौतगी का मौका है, जो पहले ही ये हो रहा है कि जनाब आपका कोई मतलब अजीज तरीन या आपका बहुत कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है, आप गम की कैफियत में हैं और ऊपर से पूरा आपका जो खानदान है, मोहल्लेदार हैं, सारे जानने वाले जो हैं उनके लिए खाने पीना। अच्छा, खाना पीना भी हम शायद पहले बात कर चुके हैं, एक नई मुसीबत है। वो क्या सर? और वो ये है कि सिंध, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के कई इलाकों में मैंने ये देखा है कि बाकायदा मरने वाले की तरफ से जो रिश्तेदार करीबी हैं, जो लवायकीन हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए जोड़ों का एहतमाम किया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं। उससे भी अगली स्टेज ये है कि जेवर दिया जाता है बाकायदा। यानी जब किसी खानदान में अगर कोई बुजुर्ग जो है उसके बारे में ये गुमान होता है कि ये रुखसत होने वाला है, तो उसके इलाज मुआवजे से ज़्यादा इस बात की तैयारी की जाती है कि 14 मर्दाना, 14 जनाना और 4 बचगाना जोड़े सिलवा लें, वो देने हैं। अच्छा अंदाजा, हाँ, ये बकायदा दिए जाते हैं, जोड़े दिए जाते हैं। ना जोड़े दें तो खानदान में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जान वालिया। अच्छा, तो उससे अगली स्टेज देखो। इस बात में मतलब ये बहुत ही अफसोस की बात है और कई दफा इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ये जो फौतगी के घर में खाना पकता है, यकीन करो कि कई बार खाने पर तबसरा आप सुने ना कि यार उसमें नमक मिर्च कम था, उसमें फलां चीज और चिकन नहीं था, ये नहीं था, तो गुमान नहीं कर सकता कोई कि ये फौतगी के खाने की बात करने लगता है, वलीमे के खाने की बात कर रहा है। वो कैसे कर रहा है और किसी ने खाना भेजा है। अच्छा, फिर एक खाने पीने पे तो हम कई दफा बात कर चुके हैं, अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि खाने पीने के लिए 2-3 दिन तक किसी करीबी शादी हाल में जगह ली जाती है, शादी हाल में खाना दिया जाता है। यानी कि उसकी अपनी शादी सादे तरीके से हुई होती है और मरने के बाद अरेंजमेंट हो रहा है साहब। और फिर ये भी कहा जाता है कि मैं बड़ा गोश्त नहीं खाता, मैं बकरे का खाऊंगा। अच्छा, इसमें अगर किसी मर्ग वाले घर में उन्होंने खाना पकाया हुआ है तो मेरा ख्याल है चलो जो दूसरे किसी शहर से आए हुए हैं उनका तो बनता है। जो उस शहर के रहने वाले हैं, मेरा ख्याल है कम से कम उन्हें शर्म करनी बिल्कुल, वो तो जाके अपने अपने घर खाएं। अच्छा, जो दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं उनको भी वो मरग वाला खाना समझ के खाना चाहिए। वलीमे के और मरग के खाने में फर्क जो है वो रवा रखना चाहिए। उस पे मतलब इस तरह के तकाजे करना या उस पर उंगली उठाना कि लो जी ये कुछ भी नहीं पकाया हुआ, इन्होंने तो सादा चावल पकाए हुए हैं, बाकी लिए ऐसी सोच नहीं, मर्ग वाला घर है, किसी ने खाना भेजा हुआ है, उस पर इस तरह की तनकीद करना या बातें करना फौत होया बंदा ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਦਾ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਕਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ फौत होया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम वो ये है कि कई दिन क्याम करना मर्ग वाले घर में। अब पंजाब के कई इलाके, कई बरादरियां, कई कबाइल सिंध में या इधर आपके ऐसे पाए जाते हैं जहां पर ये मतलब फर्ज कर लिया गया है कि मर्ग वाले घर में कम से कम 7 दिन रहना जाके या 9 दिन रहना जाके। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि 7 या 9 दिन? अब किसी घर में मर्ग हुई है, वहां गोगा ये फैसला कर ले कि मैंने 9 दिन रहना जाके, अगला दिन नहीं तो वहां पर जहां पर 9 दिन गोगा रहेगा, 9वें दिन जो है वो मरने वाले के तमाम लवाहिकीन ने भी कब्रों में जाके लेट जाने के खुदा दा वास्ता साडा कुछ करो। अच्छा सर, यार इस बात को तुम छोड़ो, मैं तो सोच रही हूं कि जिथे 9 दिन गोगा बैठा रहा उथे टोया कितना बड़ा बन गया। अच्छा, कई मेहमान तो सोचते कि चेलम करवा के जाएंगे। अच्छा, फिर ये भी तुम देखो, जहां तक कुल करवाने का एक मकसद है उसकी जो मतलब मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके नज़दीक बहरहाल अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं उस पर बहस किए बगैर कहता हूं कि उसका एक मकसद जो है कुलों का वो ये होता है कि जो मर्ग वक्त जनाजे में शरीक नहीं हो सके, आपके करीबी दोस्त, अहबाब, अजीज, रिश्तेदार, उनको आसानी देने के लिए तीसरे या चौथे दिन एक इज्तिमा रख लिया जाता है, यानी इसाले सवाब के लिए, और उसमें सारे पहुंच के मरने वाले के जो रवाकीन है उनको पुरसा दे देते हैं, बात समझ आती है। उसके बाद फिर 10वां, फिर 40वां, फिर और कई रस्में आ गई हुई हैं। उसमें होता ये है कि हर दफा एक आम आदमी को
मतलब गरीब आदमी को तो छोड़ो, अच्छा भला खाता पीता आदमी जो है वो भी हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इतने अखराजात करने पड़ते हैं। यार मुझे एक दोस्त बता रहा था कि मेरे घर में दादाजी की फौतगी के ऊपर ऐसा डेरा डाला है चंद खानदानों ने, हमारे रिश्तेदारों ने। अखीर उसने ये बेचारे ने कह दिया कि मैंने सांप पाला हुआ था, वो गडवी में से निकल के कहीं गायब हो गया। ये तो कहीं सुना हुआ वाकया लगता है दीदी। ये अपने दोस्त थैला साहब के घर का वाकया। इसने अखीर ये कहा कि साडा सप इथों गुआच गया तो इत्थे ये किधर है, सब भाग गए। तो फिर लोगों ने अपनी अपनी बुचकी चुकी, दौड़ लगा दी, डांगा ते बनी ते निकल गए। अच्छा तो एक और बात जो है वो भी बड़ी अजीबोगरीब है हमारे माशरे में जो पनप रही है, वो ये है कि चलो ये अखराजात, ज़्यादा दिन क़याम करना और ये सारी बातें तो हैं। आम तौर पे हमारे कई गाँव में, हमारे बाज़ बरादरियों में, ख़ानदानों में ये भी एक रिवाज है कि मरने वाले की मैयत दफनाने से पहले ये फैसला करना ज़रूरी है कि मरने वाला अगर मर्द है तो उसकी बेवा की शादी अब किससे करनी है फौरी तौर पे, और अगर मरने वाली खातून है तो उसके शौहर की शादी साली से या किसी और उसी ख़ानदान में या किसी और ख़ानदान में करनी है। ये फैसला मैयत को दफनाने से पहले किया जाना ज़रूरी है। कहाँ लिखा हुआ है? ये कोई मौका है, आपके असाब जवाब दिए होते हैं, गम की हालत होती है आपकी, और उस हालत में ज़िंदगी के फैसले करना ये कहाँ का खनीन इंसाफ है? मैं तो नहीं, मुझे तो समझ नहीं होती, डाइजेस्ट ही नहीं होता ये आइडिया। ये मौका है इस तरह की बात करने का, इस तरह के फैसले करने का। यार ये मर्गों पे या शादियों पे तो चलो इस तरह की जो सिचुएशन है जी, उस पे लाजमन बात करनी चाहिए और करते भी हम रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सारी जिंदगी के लिए जो म्याना रवि का हुक्म फरमा दिया गया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो सोने की तरह है। मैं कहता हूँ कि इतनी खूबसूरत बात आपकी जिंदगी के लिए हो ही नहीं को सकती। सबसे कीमती बात है कि हर चीज में, अपनी जिंदगी में, हर हरकत में, हर खर्चे में म्याना रवि इस्तेमाल करो। बात खत्म। जबरदस्त। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 100 रुपये का पेट्रोल पाओ मोटरसाइकिल में तो एक दिन भी नहीं मुक जाता है, तो पिछला बंदा भी पीछे पाओ तो उत्ते हेलमेट भी पाओ तो चलान भी कढ़ाओ, तो उससे अच्छा टांगा घोड़ा ही नहीं। 100 रुपये के घोड़े को पट्ठे खिलाओ जो सारा दिन कटता रहता है। नाज़रीन हमारे बहुत से नाजरीन इस बात पर बहुत मुतजस्सिस थे कि हमारे फीके ने ईद कैसी गुजारी, तो आइए फीके से खुद पूछ लेते हैं। और टांगा लौड़दा होवे ते पांव चंगदा, टांगे वाला खैड़ मंगदा, और टांगे वाला खैड़ मंगदा, पांव टांगा लौड़दा होवे ते पांव टांगा। पहले ईद आती थी ना तो हम लोग टांगे पे साड़ी कर लेते थे। अब ईद आती है तो नक्शे वाला कहते लियाओ 700। अभी हमने जाना था अपनी खाला के घर बेटियां रोड़ते, तो वो अम्मा कहती है कि नाले ओदी खपड़ भी ले आवांगे, नाले ईद में लावांगे। तो मैंने पापा को पूछा, हमारे मल्ले में ही रहता है। अच्छा, तो अच्छा भला मेरा दोस्त भी है। मैं कहता मुझे और मेरी बहन को और मेरे अम्मी अब्बू को ले चलो बेटियां रोड पे उधर, अरे बस आधे घंटे बाद हमने वापस आ जाना। तो कितने पैसे? तो कहता है तू मल्लेदार तो तू 700 दे देवी। मैं क्या मल्लेदार ना होता तो फिर तेन मकान लिख के देता। 700 तो वध होड़ की हुंदा है। कहता है पेट्रोल सोनिया बड़ा महंगा हो गया है। तो मलक साहब कहते हैं कि फिर तो टांगे ही चलवा लो, पेट्रोल नू ते अग्गा ही लग गई ने। पेट्रोल ते इंज नसदा जिवें पेट्रोल नाल चलण वालियां गड्डियां नसदियां। तो मलक साहब कहते हैं कि अगर पेट्रोल वाले को पूछे पेट्रोल महंगा हो गया, वो कहते हैं डॉलर महंगा हो गया। तो जो डॉलर महंगा हो गया
तो फिर गरीब बंदे नहीं मरना है बेचारे ने जिसने ना डॉलर दी कदी शक्ल वेखी सी ना वेखी है ना वेखनी है। मैं फिल्म में काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते यार। वही हीरोइन कहती है कि ना मैं तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत करती थी ना करती हूँ न करूंगी, आसिफ चले जाओ यहाँ। मैं खुदा न खास्ता हेरोइन बिल्कुल ये नहीं कहेगी। वो कहेगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मोहब्बत करती हूँ, करती रहूंगी। कौन सी वाली? जो तुम्हें आसिफ कहेगी वो वाली? हाँ फिल्म में आ सकता हूँ मैं? हाँ यार अगर गौरी साहब आ सकते हैं तुम क्यों नहीं आ सकते? ये फिल्मों में आती ये है? 8-9 फिल्मों में हीरो के तौर पे आ चुके हैं। मुझे तो अम्मी बता रही थी ये हैट वाला जो है इस तरह की चीजें ख्वाब में आती है। ये फिल्म में भी आती है? हाँ जी, स्टूडियो का आदमी है। जब फिल्म में कोई आंधी या तूफान का शॉट आता है ना तो पंखे चला के जल्दी जल्दी से शॉपर फेंकता है उनके आगे, और पर खुद ऐसे घूमता भी है साथ जल्दी से। और यार सब कुछ करता है बाबा। तो पेट्रोल महंगा हो गया है तो फिर भी करती है। यार वो मुंह से पेट्रोल निकाल के आग लगाता है, क्या फजूल बातें करते हो? तो सारे कम तो पेट्रोल महंगा हो गया पर डाल देते हैं, तो फिल्म वाले नहीं डालते पेट्रोल महंगा हो गया। बताएं गौरी साहब आपने किन किन मूवीज में काम किया? इनका बताएं। क्या नाम है? गौरी साहब, गौरी फिल्म स्टार गौरी जी। फिल्म स्टार गौरी तो हमने नहीं सुना। भाई इनका नाम छुपा के रखते हैं, बोर्ड की पिछली साइड पे लिखा होता है इनका नाम। एक फिल्म स्टार अमानत जान है, उनकी शक्ल इससे मिलती है। वो शक्ल मिलती है। ये फिल्म स्टार गौरी है। गौरी गड़ोड़ी है और इसको आटा लेके देखते हैं। इनका नाम फिल्म स्टार कड़ोड़ी होना चाहिए। टीका जी, गौरी साहब जहाँ खड़े हो गाड़ियों की ब्रेकें लग जाती हैं। क्यों ये गड्डी के आगे छलांग लगा देते हैं? ये पागल है। खुदा का खौफ करो। छुरी इधर आर पार करके हाथ में ईंट पकड़ लेते हैं, मुंह में खून फेंक लेते हैं। वो जो उधर हमारे मोहल्ले में चाचा सादम करता है जैसे। 8 है वो 8। बहुत महंगाई हो गई, अब नहीं आट मिलता। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। तो अम्मा कहती है खान पीन दियां चीजां कड़ो सस्तियां, सा डॉलर नू की करना है, सा डॉलर गोश्त पकाना है। तो अब तो हम लोग जो हैं वो सिर्फ यही सुनते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए महंगाई हो गई है। तो मलक साहब कहते हैं कि पेट्रोल नू मारो गोली तो टांगे चलाओ फिर। मलक और कहते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल पाओ मोटरसाइकिल में तो एक दिन भी नहीं मुक जाता है। तो पिछला बंदा भी पीछे पाओ तो उत्ते हेलमेट भी पाओ तो चलान भी कढ़ाओ, तो उससे अच्छा टांगा घोड़ा ही नहीं। 100 रुपये के घोड़े को पट्ठे खिलाओ तो सारा दिन कटता रहता है। 100 रुपये में घोड़ा ये भी करता है। तेनू महंगाई ना की तकलीफ है तेनू? तू किहड़े जैम बटर रबर रोटी लियानी हुंदी है? हर चीज दा घुग बना खाईदा। चल दो मैं हफ्ते में 2 दफा खालासगड़ी को ला के देता हूँ बटर जैम और डबल रोटी और मेवियों वाले बंद। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? तू किधर बैलेंस कढ़ाता? मैं नहीं बैलेंस कढ़ाता तो तुम तो बैलेंस कढ़ाती हो ना। ये टांगे में आगे बैठ जाए ना तो पीछे बड़ा पत्थर रख के बैलेंस करते हैं। इस तरह की बातें ना करो, मारेगा। वो क्यों कहता है फिर तू बैलेंस? गरीब बच्चे ने सांस भी नहीं लेना हुंदा। नहीं जी नहीं, हक है उसका। फीके आप तो मोहल्ले में सबके काम आते हो। ये बताओ आपको ईदी किस किसने दी? तुम अगर ऊपर वाला बटन बंद कर लो तो तुम्हें सांस आता है।
जी कोई देता है इस तरह किसी को? अपने अम्मी अबू देते हैं। तो अम्मा बेचारी तो अब पंखा भी नहीं चलाती। हम जब काम से वापस आ जाते हैं ना तो फिर पंखा चला देती है। तो आप साड़ी पसीने नाल पड़ी होंगी है। तो कहती है बिल ज्यादा आंदा है। अब्बे को कहती है तो मैं कहता हूँ तुम पंखा क्यों नहीं चलाती हो? माँ इतना पसीना आया हुआ है। जब वो कहती है पुत्र पसीना नहीं आया मैं नहा के आई हूँ, ऐसे कह देती है। मैं कहती है मैं आता हूँ तो पंखा चलाती हो तो अपने लिए भी चलाया करो फिर। कहती है नहीं मैनू तो हुण बुढ़ियां हड्डियां ने ठंड लगती है, मैं अपने पुत्र रास्ते चला देनी। मैंने तो सोचा था कि इस दफा अम्मा भी देगी जी तो अब्बा भी देगा जी तो खाला के घर जाएंगे तो उधर से भी ईदी मिलेगी। तो वो जो स्टेडियम में धमकारे नहीं होती है, एक दूसरे से मारते हैं छोटी छोटी गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार। अच्छा मैं सोच रहा था उधर जाकर तो गाड़ियां वो वाली चलाऊंगा। नहीं वो फिर जो नहीं मिली। फिर मैं गाड़ी मंजी पे बैठ कर तो छोटी पीढ़ी फाड़ के गाड़ी आ रही है पीछे आती है। बाबूजी वाह 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 बाबूजी आप पेंट कोट पहनते हैं तो आपका दम नहीं घुटता। की प्रॉब्लम है तेन है? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारी तरफ गाजियाबाद हाजी शाह का तकिया भी बड़ा मशहूर है। वो तो फट गया था, रुई निकल आई थी उसमें से। ये देखिए ये तकिया। यार ये जिस तकिए की बात कर रहे हैं तो समझ रहे हो वो कम्युनिटी सेंटर टाइप होता था तकिया। अच्छा जी, यादें माजी के हवाले से आपको एक ऐसी चीज याद कराने लगा हूं कि आप मजा लेंगे। अच्छा सर। तकिया 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 लफ्ज जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं तो फौरन हमारे जेहन में वो गोल तकिया यानी गांव तकिया ही आता है। बिल्कुल सर। हालांकि तकिया एक होता था, हर मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा मैदान, उसे भी तकिया कहते थे। अच्छा अच्छा। जी 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 जो अंदरून शहर भी होते थे ना, तंग तंग गलियां गुलियां, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी जगह रखी जाती थी जो तकिया के नाम से होती थी। अच्छा। और वहां पे मोहल्लेदारों की, वहां के रहने वालों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती थी। मसलन वहां पे लाइमन एक बोर्ड का दरख्त भी होता था। अच्छा। जिसके नीचे चारपाइयां डटी होती थी या नीचे दरी बिछा के बाबे ताश खेला करते थे। और अक्सर तकियों के अंदर कोई ना कोई मयार भी होता था। ये बाबे रंदी कबर है लाइमन, पावे को बाबा बेचारा जो है वो 11वें ग्रेड का ही बाबा हो ना हो 18वें ग्रेड का, मगर होता जरूर था। और उस बाबे के मुतल्लक भी एक स्टोरी होती थी और अच्छी स्टोरी होती थी कि बाबा बड़ा फकीर आदमी था। और उस तकिए के इर्द गिर्द या तो कोई जंगला वंगला भी लगा होता था। अगर जंगला वंगला नहीं था होता तो उसकी जो सतह है वो बाकी जमीन से या ऊंची होती थी या नीली होती थी। इसलिए वो निशानदही के तौर पे पता चल जाता था कि ऐना ऐना तकिया है। उसमें लाइमन तकरीबात जो हैं वो तो होती ही थी। किसी की शादी ब्याह भी उस तकिए ही हो गया, या अल्लाह ना करे को फौतगी हो गई है तो कोई जो ज्यादा घर वाले हैं वो तकिए में बैठ जाए दरिया बिछा के। उसके अलावा वहां पे फंक्शन वगैरह होते थे। अच्छा। गाने बजाने की महफिलें भी होती थी। है जी। फिर अपना अगर कोई आर्टिस्ट आप मंगा के तो कोई शुगर मेला करना है वो भी उधर हो जाता था। अच्छा। हाँ हाँ। और फिर जिस तरह ईद मिलादुन नबी पे या 23 मार्च यौम आज़ादी पे या 14 अगस्त पे इस तरह की जगहों पे तकरीबात हुआ करती थी और वो सारे महल्ले वाले आपस में मिल के कर दिया करते थे। फिर खास तौर पे ईद के मौका पे ईदगाहें लगती थी उस तकिए के अंदर। अच्छा। वो जगह जो छोड़ते थे ना जी, वो इतनी कीमती होती थी कि वो सारे मोहल्ले के काम आती थी। बिल्कुल सही। और बड़े बड़े मशहूर तकिए हुए हैं। इधर चैम्बरलैन रोड के ऊपर एक तकिया बड़ा मशहूर है, तकिया मरासिया। अच्छा। अब तो मरासी लफ्ज जो है वो चूंकि
हम तज़हीक के तौर पे इस्तेमाल कर के चंद शोहे लोगों ने ये खराब कर दिया है। हालांकि ये जो चैम्बरलैन रोड पे जो मशहूर था तकिया मरासिया, इसके मुतल्लक मशहूर है कि पूरे इंडिया के बड़े 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 मौसीकार और गुलूकार इस तकिए में आके उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया। अरे वाह, क्या नाम बताया जी? तकिया मरासिया चैम्बरलैन रोड के ऊपर बड़ा मशहूर है। और उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल इंडिया बड़े बड़े मौसीकार और बड़े बड़े गुलूकार जो है उन लोगों ने उधर आके परफॉर्म किया हुआ। एक और तकिया लाहौर का बड़ा मशहूर है, तकिया गौशाला। एक और बड़ा मशहूर है तकिया लहरी शाह। सर मुल्तान में भी एक हरन शाह का तकिया कैंट में। हाँ जी हाँ जी, ये बाकायदा ना जी जैसे हाल होते हैं अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स या अलहमरा हाल नंबर 1, हाल नंबर 2, इस तरह ये बाकायदा इसी स्टेटस के मशहूर होते थे तकिए, क्योंकि वहां पे महफिलें लगती थी, मुशायरे होते थे। अब तो डायमंड और मास्टर फोम वालों के तकिए ज्यादा चलते हैं। नहीं बाकी बड़े मशहूर हैं। यानी हम ये इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर हम कोई लाइट टॉपिक भी लेके आते हैं तो उस पे को बड़ी अच्छी इंग्लिश रिसर्च हमारा एंकर हमें सुनाएगा। ये इंग्लिश एंकर जेड़ा साडा वो जुल्फी तो भी छोटा भरा बने। अच्छा एक मिनट ठहर, मैंने गलत बात की है। क्यों जी? मास्टर और डायमंड फोम वालों के तकिए नहीं है ना? तकिए तो है ना यार। मैं जिस तकिए की बात कर रहा हूँ उधर ही जा करो, हमें छोटी ननान अगर जिद ना ला अजीजी एंकर हमारा आहिस्ता आहिस्ता सत्ते पे सत्ते का आखिरी भाई बना हुआ। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने। अब तकिया ठीक है। अच्छा अजीजी उधर हमारी तरफ गाजियाबाद हाजी शाह का तकिया भी बड़ा मशहूर है। वो तो फट गया था, रुई निकल आई थी उसमें। ये देखेंगे तकिया। यार ये जिस तकिए की बात कर रहे हैं तो समझ रहे हो, वो कम्युनिटी सेंटर टाइप होता था तकिया। अच्छा, फिर इन तकियों के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत बात ये होती थी कि यहाँ मोहल्ले की खवातीन भी आके इकट्ठी होकर बैठती। सिर्फ बंदों के लिए नहीं था होता खवातीन। और मैं ईमान से ये सीरियस कहूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह की जगहें जो हैं या इस तरह की बैठकें खत्म होने की वजह से हम बहुत नुकसान में चले गए। एक तो हमें एक दूसरे का पता नहीं चल रहा, एक हमारे कथारसिस नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे अंदर हसद, लालच, बेइत्मीनानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तीनों चारों जो है ना जी नुकसानदेह चीजें इंसान के लिए, ये उधर इकट्ठे बैठने से निकल जाती है इंसान के जहन से, दिलो दिमाग से ये निकल जाती है। बंदा रिलैक्स हो जाता था एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का। अच्छा जी ऐसे बहू भी जाते थे तकिए में? नहीं जी, इस तरह के बहू बल्कि अपने बच्चों को कह रहे होते थे उधर मत जाया करो। उधर लोग बैठ के सिगरेट पी रहे होते। तुम्हें पता उधर परसों सांप निकल आया था। ये था आज का हस्पे-हाल। और आज की अच्छी बात ये कि ज़माने का शिकवा करने की बजाय खुद को बदल लीजिए। गंदगी से बचने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।